Hello everyone, it's Satish and this is our fourth session we are dedicating to build up our vocabulary. But before learning that, let's talk about today's first quote. Words are most powerful weapon as war stops and starts due to it. We have lots of evidences for that. Words can help us to de-escalate the concept of an enemies. Also, it can help us to understand that there is the perception of injustice in both sides in a war. Words help us to refrain from belligerence. Also, it teaches us to get prepared to forgive and ask for forgiveness. But these all things are only possible when we assess the words. That's why I genuinely believe on my one quote, guys. If you rule the words, you rule the world. So let's come together and build up our vocabulary by learning phrases and idioms. पिछले 3 सेशन में हमने 30 से ज़्यादा idioms and phrases को लर्न किया है और हमने साथ में उसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया हुआ है। इस सेशन में हम नए 10 idioms and phrases को लर्न करेंगे, साथ में हम उनके एग्जाम्पल्स को भी सीखेंगे और हम देखेंगे कि अगर उन्हीं एग्जाम्पल्स को बिना idioms and phrases के साथ कहा जाए तो हमें कितना कुछ ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। So let's learn the first phrase for today and that is fair weather friend. In Hindi we call it Swarthi Dost. Means whenever you have any friend in your life who is extremely selfish or that person is always around you whenever you have so much amount of money or you are very happy in your life, but whenever you are in trouble or you have a very bad days of your life and that time if you need that person would never help you. अगर ऐसा कोई दोस्त आपकी जिंदगी में होगा तो उस बंदे को आप कह सकते हो fair weather friend. Example we have, you can't rely on Sham as he's strictly a fair weather friend. अगर यही सेंटेंस हम बिना फ्रेज से कहें तो हमें क्या कहना पड़ेगा? That you should not be dependent on Sham, that he is extremely selfish. Means whenever you need him, he would never come in your life, but whenever he needs something from you, he would be always around you. He will leak boots around you. कितना कुछ कहना पड़ा हमें। इससे अच्छा आप सिंपली एक सेंटेंस बोल दीजिए लाइक यू कांट रिलाई ऑन अ शाम, ही इज स्ट्रिक्टली अ फेयर विद अ फ्रेंड एंड दैट्स इट। एक सेंटेंस में हम वो सब कुछ कह सकते हैं जो हमें कहना है। तो बहुत ही अमेजिंग फ्रेजेस को हम अच्छे से लर्न करेंगे। नाउ लेट्स लर्न द नेक्स्ट फ्रेज वी हैव and that is fall on one's face और fall flat on one's face। यहाँ पे जो वर्ड once है ये रिप्लेसेबल है, इसकी जगह पे हम his, your, my, their ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अ सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है मुंह के बल गिरना या किसी के सामने गलत सिद्ध हो जाना। मीन्स whenever somebody is making blunder in front of you and you know very well that and every time he is getting failed to make impression on you, ऐसी सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे fall on one's face or fall flat on one's face. Example we have that astrologer keeps falling flat on his face with his prediction. इसी एग्जाम्पल को अगर बिना फ्रेज से हम कहें तो कैसे कहना पड़ेगा? लाइक एवरी टाइम दैट एस्ट्रोलॉजर वाज मेकिंग प्रेडिक्शन एंड दैट वाज नथिंग बट अ ब्लंडर एंड इट वाज गेटिंग फेल्ड एवरी टाइम एंड वी केम टू नो ही वाज नथिंग बट अ फेक पर्सन, ही वाज अ फ्रॉड। कितना कुछ कहना पड़ा हमें। इससे अच्छा हम सिंपली एक सेंटेंस बोलेंगे दैट एस्ट्रोलॉजर कीप्स फॉलिंग फ्लैट ऑन हिज फेस विथ हिज प्रेडिक्शन और एक सेंटेंस में हम सब कुछ कह सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, हमने यहाँ पे हीज फेस बोला है इंस्टेड ऑफ वंस फेस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे हीज ये वर्ड को रिप्लेस किया इंस्टेड ऑफ वंस। तो बहुत ही अच्छी फ्रेज है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। चलो वी विल लर्न द नेक्स्ट फ्रेज वी हैव एंड दैट इज फार एंड नियर। इन हिंदी वी कॉल एज हर तरफ से। मीन्स व्हेनेवर द पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल डिस्टेंस प्लेसेस और दे आर कमिंग फ्रॉम नियर बाय places, so instead of saying that आप simply कहोगे far and near. Example we have, people came from far and near to attend the fair. अगर यही सेंटेंस हम बिना फ्रेज से कहें तो हमें कैसे कहना पड़ेगा? लाइक पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल डिस्टेंस प्लेसेस, दे आर कमिंग फ्रॉम विलेजेस, दे आर कमिंग फ्रॉम सिटीज और स्टेट्स। क्यों कहना है इतना? उससे आप सिंपली कहेंगे पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू अटेंड द फेयर और एक लाइन में हम सब कुछ बता सकते हैं। तो बहुत ही इजी और सरल फ्रेज है, इसको हम बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट फ्रेज लर्न करेंगे फ्रॉम फार एंड वाइड। जब हमें कहना है दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मीन्स whenever you talk about anything over the large area, so instead of saying that आप simply कहोगे from far and wide. Example we have, expanding industry sucked in labor from far and wide. अब इसी सेंटेंस को अगर बिना फ्रेज से कहें तो हमें क्या कहना पड़ेगा? As industry is getting expanded a lot, as technology is developing a lot, because of that laborers are losing their jobs, not from nearby places, from all over the country, from all over the states.
कितना कुछ कहना पड़ा हमें। इससे अच्छा हम सिंपली कहेंगे एक्सपांडिंग इंडस्ट्री सक्ड इन लेबर फ्रॉम फार एंड वाइड, और एक लाइन में वो सब इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं जो हम देना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फ्रेज है गाइस, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। चलो हम नेक्स्ट फ्रेज लर्न करते हैं, एंड दैट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स और इन फिट्स एंड स्टार्ट। यहाँ पे जो बाय और इन वर्ड है एक दूसरे को रिप्लेसेबल है, आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। इस फ्रेज का मतलब होता है बीच बीच में, मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ इरेगुलरिटी इन वर्क, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, maybe in business or maybe in certain conditions or maybe in your work. So instead of saying that, आप simply कहोगे in fits and starts. Example we have, the economy was recovering in fits and starts. अगर यही सेंटेंस हम बिना फिर से कहें तो हम कैसे कहेंगे, लाइक एज इकोनॉमी वाज रिकवरिंग बट देयर वाज नो ग्रोथ कंटिन्यूअसली, देयर वाज अप्स एंड डाउन्स, समटाइम्स इट वाज इंक्रीजिंग, समटाइम्स इट वाज डिक्रीजिंग। कितना कुछ हमें ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। इससे अच्छा हम सिंपली एक लाइन बोल देते हैं, द इकोनॉमी वाज रिकवरिंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, दैट्स इट। एक लाइन में हम सब कुछ बता सकते हैं, एक सेंटेंस में हम सब बता सकते हैं जो अब हम कहना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी फ्रेज है, इसको हम अच्छे से लर्न करेंगे गाइज। लेट्स लर्न द नेक्स्ट फ्रेज वी हैव, एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल और फर्स्ट ऑफ। इन हिंदी वी कॉल है सबसे पहले, मीन्स whenever you want to do something immediately or you are in hurry of doing or finishing something in a very quick manner, so instead of saying that आप simply कहोगे first of all or first off. Example we have, he said to wash the car first off. अगर इसी सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन से कहें तो कैसे कहना पड़ेगा, लाइक he told me that we must wash a car immediately and then we should do remaining thing. हमें 3 लाइंस बनानी है, 3 सेंटेंसेस बनाने पड़े एक इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। अगर वही हम इस तरह से कहें तो कैसे कहना पड़ेगा, लाइक he said to wash the car first off and that's it। एक लाइन में वो सब कुछ कह सकते हैं जो हमें कहना है। तो बहुत ही अमेजिंग फ्रेज है, इसको अच्छे से लर्न करेंगे गाइस। लेट्स लर्न द नेक्स्ट फ्रेज वी हैव, एंड दैट इज in the first place. In Hindi we call it सबसे पहली बात, means before anything else, if you want to say something or if you want to do something, so instead of saying that आप simply बोलोगे in the first place. Example we have, why didn't you tell me in the first place that you have decided to leave? अब इसी सेंटेंस को अगर हम बिना फ्रेज से कहें तो कैसे कहना पड़ेगा, like you should have informed me earlier, you must have informed me earlier that you have decided to leave, you know, why didn't you tell me about that? हमें 4 या 5 लाइन कहनी पड़ेगी। उससे अच्छा हम सिंपली कहेंगे व्हाई डिडंट यू टेल मी इन द फर्स्ट प्लेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू लीव, और एक सरल सेंटेंस में हम बहुत कुछ इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो बहुत बार आपने सुनी भी होगी, इसको प्लीज लर्न कीजिए। लेट्स लर्न द नेक्स्ट फ्रेज वी हैव, सेट फायर टू और सेट ऑन फायर। इन हिंदी वी कॉल इसको आग लगाना, मीन्स whenever you set something on a fire or whenever you burn something because of some reason, so instead of saying that आप simply कहोगे set fire to or set on fire. Example we have, they set fire to vehicles outside of that building. अगर ये हम ट्रांसलेशन से कहें तो कैसे कहना पड़ेगा, like you know they were burning all the vehicles who were standing outside of that building. इतना कहने से आप सिंपली कहोगे दे सेट फायर टू व्हीकल्स आउटसाइड ऑफ दैट बिल्डिंग, और एक लाइन में हम वो सब बता सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी फ्रेज है जिसको अच्छे से लर्न करेंगे। नाउ लेट्स लर्न द नेक्स्ट फ्रेज वी हैव, एंड दैट इज ट्विस्ट अराउंड वंस लिटिल फिंगर और वाइंड राउंड वंस लिटिल फिंगर। यहाँ पे जो ट्विस्ट वर्ड है इसकी जगह पे आप चाहो तो वाइंड ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो ट्विस्ट अराउंड वंस फिंगर कहिए या वाइंड राउंड वंस फिंगर कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो वंस वर्ड है इसकी जगह पे हम हीज, योर, माय, हर ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो फ्रेज है उसको हम कहेंगे ट्विस्ट अराउंड वंस फिंगर, या चाहो तो आप ट्विस्ट अराउंड वंस लिटिल फिंगर भी कह सकते हो। इस फ्रेज का मतलब होता है किसी को उंगलियों पे नचाना, मीन्स whenever you are able to slave someone's mind or you are able to take any kind of a work from someone, maybe that person is ready to do because that person likes you so much and that person doesn't want to lose you. So instead of saying that much, आप simply कहोगे twist around one's finger. Example we have, he would do anything for you, you have got him twisted around your little finger. अब इसी सेंटेंस को अगर हम बिना फ्रेज से कहें तो कैसे कहना पड़ेगा, like he would do any kind of a work for you because you know he loves you or he likes you and you are able to use him for your benefit the way you want. You are able to slave his mind and he can be able to do all kind of a work for you. So instead of saying that much information, आप simply कहोगे he would do anything for you, you have got him twisted around your little finger, and that's it। एक लाइन में हम सब कुछ कह सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग फ्रेज है, इसको अच्छे से लर्न कीजिए। सो लेट्स लर्न द लास्ट फ्रेज फॉर अ डे, एंड दैट इज
fight shy of. In Hindi we call it से दूर रहने का प्रयास करना. Means whenever you are trying to be away from something intentionally or you're not taking interest in something to be involved, so instead of saying that much आप simply कहोगे fight shy of. Example we have, Amir has never fought shy of controversy. So अगर इसी sentence को हम बिना phrase से कहें तो कैसे कहना पड़ेगा? Like Amir dares to face any kind of a controversy, he doesn't feel bad about it, he always involved himself in that. हमें 2 या 3 लाइन कहने पड़े, उससे अच्छा हम सिंपली कहेंगे आमिर हैज़ नेवर फॉट शाय ऑफ कंट्रोवर्सी, और एक लाइन में वो सब कुछ हम कह सकते हैं. तो बहुत ही अच्छी फ्रेज है, इसको लर्न करेंगे. सो दीज आर आवर 10 phrases फॉर अ डे. लेट्स रिवाइज एट वंस. आवर फर्स्ट फ्रेज फॉर अ डे इट वॉज फेयर विद अ फ्रेंड. इसका मतलब होता है स्वार्थी दोस्त. मीन्स व्हेनेवर यू टॉक अबाउट समवन हु इज़ वेरी सेल्फिश or he is your friend, you know, and he wants to use you the way he wants, and whenever you need him he doesn't help you that time, so instead of saying that much आप बोलोगे fair with a friend. बहुत ही अच्छी phrase है, इसको learn करेंगे. Next phrase we have fall on one's face or fall flat on one's face. यहाँ पे जो one's word है ये replaceable है, इसकी जगह पे हम his, your, my ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मतलब होता है मुंह के बल गिरना. मीन्स whenever somebody is making blunder in front of you or he is trying to impress you by doing something, but you know very well he is very fake and he is not getting succeed in it, so instead of saying that much आप इस phrase का इस्तेमाल कर सकते हो. Next phrase we have far and near. इसका मतलब होता है हर तरफ से, everywhere. So instead of saying everywhere आप इस phrase का इस्तेमाल करिए. Next phrase we have from far and wide. दूर दूर से, जब हम बोलते हैं कि लोग ओवर द लार्ज एरिया, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट मच आप बोलोगे फ्रॉम फार एंड वाइड. बहुत ही अच्छी फ्रेज है, रोज इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसका. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स और इन फिट्स एंड स्टार्ट. यहाँ पे जो इन वर्ड है और बाय वर्ड है एक दूसरे को रिप्लेसेबल है. आप इसमें से कोई भी एक वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए. इसका मतलब होता है बीच बीच में या उतार चढ़ाव. मीन्स वेन एवर देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन योर वर्क और देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन योर बिजनेस और समटाइम्स इट्स ग्रोइंग एंड समटाइम्स इट्स नॉट, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट मच आप सिंपली कहोगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स और इन फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो बहुत ही अच्छी फ्रेज इसको लर्न करेंगे. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल और फर्स्ट ऑफ. ये फ्रेज आपने बहुत बार सुनी होगी. इसका मतलब होता है इमीडिएटली. मीन्स व्हेनेवर यू वांट टू डू समथिंग इमीडिएटली और यू आर इन हरी टू फिनिश समथिंग, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करोगे. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव इन द फर्स्ट प्लेस. जब आप किसी चीज़ को बहुत प्रायोरिटी देते हो, सबसे पहले रखते हो, तो आप उस वक्त इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव सेट फायर टू और सेट ऑन फायर. इसका मतलब होता है मीन्स व्हेनेवर यू आर सेटिंग समथिंग ऑन अ फायर और यू आर बर्निंग समथिंग, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करोगे. इसको हम हिंदी में कहते हैं किसी चीज को आग लगाना. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव ट्विस्ट राउंड वंस लिटिल फिंगर और वाइंड राउंड वंस लिटिल फिंगर. यहाँ पे जो ट्विस्ट और वाइंड वर्ड है एक दूसरे को रिप्लेसेबल है, और यहाँ पे वंस की जगह पे आप हीज, योर, माई ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करोगे. इट डिपेंड्स अपॉन अ सब्जेक्ट. और इस फ्रेज का मतलब होता है किसी को उंगलियों पे नचाना. मीन्स व्हेनेवर यू आर एबल टू स्लेव्स समवन माइंड और यू आर एबल टू यूज समवन फॉर योर बेनिफिट द वे यू वांट टू, एंड दैट पर्सन इज रेडी टू वर्क बिकॉज दैट पर्सन लाइक्स यू और दैट पर्सन doesn't want to lose you, so instead of saying that much information आप simply कहोगे twist round one's little finger और आपको सब information मिल जाएगी. तो बहुत ही अच्छी फ्रेज है, इसको लर्न कीजिएगा. इस लास्ट फ्रेज फॉर अ डे दैट्स फाइट शाई ऑफ. इसका मतलब किसी से दूर रखने का प्रयास करना. मीन्स whenever you are trying to keep yourself away from something intentionally and you are not trying to be involved in something, you know, you're not taking interest to be involved in something, so instead of saying that आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो. तो ये 10 फ्रेजेस है. प्लीज लर्न बाय हार्ट गाइज. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन सभी फ्रेज को हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं. सो गाइज प्लीज लर्न देम बाय योर हार्ट. And I recommend you one thing, you can make examples on these phrases in comment section. अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ आप गलत कर रहे हो तो I will definitely get back to you guys. So please learn by heart these phrases and use them every single day. Guys, please like, share and subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon to get notification for the future videos. आने वाले समय में हम बहुत अमेजिंग नॉलेज शेयर करने वाले हैं, बट फिलहाल हमारा फोकस पूरा idioms एंड फ्रेजेस पे है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम और नई 10 idioms एंड फ्रेजेस को लर्न करेंगे. टिल दैट टाइम, बाय गाइज.